دے اور آپ انشاءاللہ بہتر طریقے سے لائیں گے. تو اسی ریکویسٹ کے ساتھ ہم آئے ہیں سردار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اب پریس کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویٹ کیا، انتظار کیا، اور نوازادہ گورام صاحب، سردار بابر صاحب، کوسو صاحب، ایک اور دو دوست آئے ہوئے ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں. یہ دوسری تیسری دفعہ تشریف لا رہے ہیں میرے پاس. آج بھی نوازادہ صاحب نے بلوچی حال حوال میں کہا کہ ہم ایک بلوچی دستور کے مطابق ہم میڑ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں، بیٹھے اس پہ ذرا غور کریں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی جام صاحب سے کوئی پرانا کوئی قبائلی کوئی دشمنی ہے یا سیاسی اختلافات ہے یا کچھ ہے. میں نے استعفیٰ اپنے کسی ذاتی مفاد یا ذاتی مقصد کے لیے نہیں دیا تھا. اسکول آف ایکسیلنس جو 14 مہینے میں نے اس پہ محنت کی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ریزیڈنشل کالج بنے، اور 7 ہمارے ڈویژنز ہیں، تو 8 ہم ریزیڈنشل گرلز کالج ہم بنانا چاہتے تھے. تو وہ پتہ نہیں کیا ریزنز ہوا. ہم نے تو جام صاحب کو اعتماد میں بھی لیا تھا، ان کو بتایا بھی تھا، ان سارے پروسیس سے بھی ہم گزر کے آئے تھے. الیکشن کے دن وہ میرا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. تو پھر میں نے محسوس کیا کہ پھر میرے جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. 14 مہینے جتنی میں نے محنت کی ہے، اگر میرا یہ پروجیکٹ جو میرا ڈریم پروجیکٹ تھا اگر وہی ڈراپ ہو جائے تو پھر مجھے کام کرنے کی حق نہیں پہنچتا. جو میرا ایک خواب تھا کہ میں بلوچستان میں ایک انقلاب لاؤں، اور خاموش انقلاب لاؤں اس کے اندر، تعلیم کے اندر. ہمارے ہاں سب سے پہلے ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ جی بلوچستان ایجوکیشن کے حوالے سے، خواندگی کے حوالے سے بہت پیچھے ہے. اور میرا یقین ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ انشاءاللہ جو مجھے یقین دہانی کرائی گئی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے، اور جام صاحب نے بھی دوستوں کے تھرو مجھے کہلوایا ہے کہ انشاءاللہ وہ جیسے واپس آئیں گے تو اس پروجیکٹ کو اپروو کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ میرا ایک خواب تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ وہ اس خواب کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے. میں آج سارے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ نہیں تیسری دفعہ میرے پاس تشریف لائیں. میں جام صاحب کے ساتھ، جام صاحب کی کابینہ میں اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں اگر ان کی اپنی خواہش ہے. تو میں آج دوستوں کو بحیثیت ایک بلوچ سردار بھی ہیں، نوابزادے بھی ہیں، ہمارے معتبرین بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میرے کلیگ بھی ہیں، اگر انہوں نے یہ سوچا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے تو مجھے بھی فخر ہوگا، میرے لیے باعث عزت ہوگا کہ میں ان دوستوں کے ساتھ اس کابینہ میں مل کے کام کروں. کابینہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اگر میرے لیے اہمیت رکھتی تو جیسے انہوں نے بجٹ پاس کیا میں نے اسی وقت ہی ریزائن اٹھا کے جام صاحب کے گورنر صاحب کو بھیجوا دیا. اگر یہ پروجیکٹ نہیں ہے، یہ جو میں چاہتا ہوں اصلاحات تعلیم کے اندر وہ اگر نہیں ہو رہی ہیں تو پھر میرا کام کرنے کا، وقت ضائع کرنے کا اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے یا بلوچستان کے لیے، یہ میرا ایک خواب تھا. آج شکر الحمدللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پورا کریں گے، اور اس کو ہم وہ کریں گے تو مجھے جام صاحب کے ساتھ، ان رفقا کے ساتھ کام کر کے بہت خوشی ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا. سردار صاحب، آپ کے استعفے کے بعد آپ کے ضلع میں بہت سے افسران کو آپ کی اجازت سے بغیر وہاں سے نکالا گیا. تو اس سلسلے میں یہ تو ایک ایسا لگتا تھا کہ باقاعدہ ایک انتقامی آپ کے ساتھ سلسلہ شروع ہے. تو وہ کیا آپ کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ابھی آپ کے ضلع میں وہ مداخلت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے جی، اس اسمبلی میں بھی میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ میرے ضلع کے اندر سیاسی طور پہ مداخلت ہو رہی ہے. آئی ہوپ یہ جو میرے دوست آئے ہیں اور جو ہمارے دوست اس وقت موجود نہیں ہیں جنہوں نے مجھے کمٹمنٹ کی ہے، آئی ہوپ کہ جام صاحب اس کو، یہ جو مداخلت ہے اس کو وہ روکیں گے بھی صحیح، اور اس میں اپنا ایک مؤثر کردار ادا کریں گے. نہیں تو سندھی کا ایک مثال ہے، میں کیا دوں ابھی، چلیں تو آگے وقت بہت ہے، 2 سال کا ٹائم ہے. اگر انہوں نے چلنے کی کوشش کی تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے اور نیک نیتی کے ساتھ چلیں گے. اگر انہوں نے ہماری ضرورت محسوس نہیں کی تو یہ ایوان، یہ چیزیں اور استعفے تو پھر دوبارہ دینے میں کوئی ٹائم تو نہیں لگے گا. بہرحال میں امید کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں میری پارٹی، میں اس وقت جو اس پورے خطے کے اندر حالات ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے سراؤنڈنگز میں جو حالات ہو رہے ہیں، اس میں ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لینا چاہتا جس سے میرے صوبے کے، میرے لوگوں کے حالات خراب ہوں.
अब हमें मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि हाल आने वाला वक्त जरा कड़ा वक्त है, मुश्किल वक्त है, और उसमें हम एक दूसरे के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी फायदा पहुंचेगा और बलूचिस्तान के अवाम को भी। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब एक सवाल है, दोस्तों को मनाने का सिलसिला जो शुरू किया है, सरदार सालेह भूटानी भी नाराज है, तो क्या उनके पास भी मेड जा रहा है और क्या उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए मैं जवाब दूं, फिर असल जवाब देने वाले ये लोग। सरदार सालेह भी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको भी कुछ इख्तिलाफात थे, कुछ वो थे। देखें, सूबे का एक आदमी होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसको हम उर्दू में वजीर आला कहते हैं। अब वो उनके काबीना के हिस्सा थे, उनके मेंबर थे, उनकी जमायत के बंदे थे। वो वापस जाम साहब उनको लाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अब बाप वाले क्या करना चाहते हैं वो आपको। सरदार साहब ने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल वो भी हमारे लिए मोहतरम है। देखें, इख्तलाफात हो जाते हैं, कुछ इशूज पे, कुछ मामलात पे नाराजगियां भी हो जाती हैं। सरदार साहब के हम शुक्रगुजार हैं, जाम साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन दोनों ने चीज़ों को समझा और आज सरदार साहब ने मेहरबानी करके वापस आए। तो सालेह भूटानी भी हमारे लिए बड़े मोहतरम है, उनके लिए भी हम जाम साहब से इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, कोशिश करेंगे वो भी वापस हमारे काबीना में आ जाए। हमारे लिए बड़े मोहतरम है, इंशाल्लाह ताला उसको भी हम देखेंगे। आप हुकूमत के साथ तो राजी हो गए, जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ के साथ भी कुछ आपकी खलिश चल रही है, तो क्या वहाँ से भी कोई वक्त आपके साथ इस तरह की मुज़ाकरात या आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से राब्ते कर रहे हैं? देखिए, मेरे कोई इस वक्त तो तहरीक इंसाफ के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है। अलबत्ता बात यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पार्टी के अंदर भी होते हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कुछ गिले होते हैं, कुछ हमारे बलूचिस्तान के मसाइल हैं, इश्यूज हैं, वो हैं, ज़रूर हैं। देखिए, 3 विजिट हुए प्राइम मिनिस्टर के, हम पार्लियामानी पार्टी के एक बंदे को भी नहीं बुलाया गया। तो हम तो तवक्का करते हैं ना कि सिर्फ हमारा इमरान खान सिर्फ पार्टी का चेयरमैन नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं और वो अमीर कारवां भी हैं। उन्होंने ही लेके हमको चलना है। और बलूचिस्तान के मुझे इसलिए मैं ज्यादा मुझे तकलीफ महसूस होती है कि ये दोस्त जो इस वक्त हम असेंबली में मौजूद हैं, मेरे आने के बाद, मेरे एक एक आदमी के एफर्ट करने के बाद, उनके घरों में जाके उनको मिन्नतें करके पीटीआई में आज हम ले आए। अगर मुंतखब नुमाइंदों को अहमियत नहीं दी जाएगी, सिर्फ वो लोग जो सिर्फ बैठ के बूट पॉलिश करते हैं, अगर उन्हीं का सुना जाएगा तो मेरे ख्याल में ये बलूचिस्तान की भी हकतलफी है और हमारे साथ भी हकतलफी है। और बात यह है कि ये बात हमें इमरान खान ने खुद कही है कि अपने हक के लिए लड़ो और आवाज उठाओ। सरदार साहब, आप दफ्तर कब रिज्यूम करेंगे? जब आपको रिटर्न में ये मिल जाएगा सारा मंसूबा आपका शामिल होने वाला, तब करेंगे या कल से कर लेंगे? और दूसरी बात ये कि ये तो 1 पॉइंट एजेंडा है, क्या दीगर शराइत भी हैं जिसके ऊपर कोई एग्रीमेंट हुआ है? देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, बात ये नहीं कि मुझे कोई जाती मेरे मुफादात है या जाती मेरी चीजें थी, एक्सेप्ट एक शुगर मिल की परमिशन के लिए। वो भी तो मेरे अकेला नहीं है, मैं लोगों को ले आया हूं, इन्वेस्टर्स को। मैं एक शुगर मिल इलाके के लिए लगवाना चाहता हूं जिसमें 2,500-3 हजार आदमी को हम रोजगार, कितने हम साल में कितने लोगों को रोजगार देते हैं। वो मेरा डिवीजन है, मेरा घर है, मेरे कौम, मेरा कबीला, मेरे दोस्त वहां रहते हैं। वो अभी तक कोई 1 साल से वो पेंडिंग पड़ी हुई है। मेरी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान में तो इंडस्ट्रीज लग नहीं रही है, अगर वो हमें परमिशन देंगे तो हम उन इन्वेस्टर्स को लाके यहाँ पे मिल लगाने चाहते हैं, ताकि हमारे गरीब लोगों को, और हमारे वो एक पर्सनल मेरा वो है उसमें, अदरवाइज मेरा कोई इशू नहीं है उनके साथ। बाकी जो कुछ भी है वो अवाम के हैं, मसले हैं डेवलपमेंट के या दूसरे या तीसरे। और आई होप कि वो ऐसे मसले नहीं है कि जाम साहब के लिए मैंने कोई मसाइल का पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा। सरदार साहब, सेनेट की सीट से आपने सरदार खान को विड्रॉ करा के 2 बाप के सेनेटर आप लाए, उसके बाद आपके साथ ये इंतकामी कार्रवाई है। क्या अभी आपको यकीन है, क्योंकि अक्सर जो मिनिस्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनका ये होता है कि जी सेक्रेटरी को बुलाते हैं, वो कहता है जी मैं जाम साहब को जवाब दूं, आपको नहीं हूं। तो अभी ये लोग जो आए हैं, क्या आपको है कि ये आइंदा जाम साहब जो है वो आपके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे? आई होप कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, बलूचिस्तान की जितनी काबीना है उसके एक दस्तूर के तहत एक रूल्स रेगुलेशंस हैं,
इंशाल्लाह जाम साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी और काम कर ख्वाहिशमंद हैं, तो मुझे यकीन है कि बजाय ये ग्रुपों के थ्रू गवर्नमेंट चले, प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह जाम साहब उसको चलाएंगे। और जब वो हमारे साथ बैठ के इस मसले को हल करना चाहते हैं तो आई होप, मुझे बहुत उम्मीद है जाम साहब से कि उस मसले को प्रॉपरली वो हल करेंगे। एक दूसरी बात यह है कि हम चलाना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट सिस्टम को चलाना चाहते हैं और विद इन गवर्नमेंट आवाज हमारा हक है, बात करना हमारा हक है कि असेंबली में भी हम बात करें और कैबिनेट में भी हम बात करें। जहां आवाम की मसाइल होंगे, इश्यूज होंगे, हम जरूर बात करेंगे, असेंबली में भी बात करेंगे और जाम साहब की कैबिनेट में भी बात करेंगे। अगर वो समझते हैं कि हमारी आवाज अगर उनको नागवार गुजरती है तो हमें बुलाएं, चाय का एक कप पिलाएं और हम खुशी खुशी उठ के चले जाएंगे, हमें फिर कैबिनेट में रहने की जरूरत नहीं है। मगर हम ये आपको बता दें कि हमने पहले भी उनको कहा था कि असेंबली में भी कहा था कि वो जो अच्छा काम करेंगे बलूचिस्तान के लिए हम उनके साथ होंगे। अगर वो हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के अगेंस्ट, बलूचिस्तान के अवाम के मफाद के अगेंस्ट है तो फिर हम जाम साहब से माजरत मांग लेंगे। अदरवाइज हर अच्छे काम के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो इस्लाहात वो लाना चाहते हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, हम उनके साथ बिल्कुल मिलके उस चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा कौशल साहब, ये बताएं कि नाराजगियां काफी सारी है, जैसे सरदार साहब भी नाराज, साले साहब भी, इसके अलावा भी वक्तन फवक्तन वज़रा नाराज होते हैं। मगर इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली की जो स्पीकर है और वज़ीर आला जाम कमाल आमने सामने है, बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी शदीद सामने आते हैं, वक्तन फवक्तन आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जाम साहब काबीना को ये नाराजगियों की नौबत आती क्यों है? इस तरह वजूहात क्या है, क्या फुकदान है? इस तरह की बात नहीं है। आप लोगों को कुछ ज्यादा नाराजगियां नजर आ रही हैं, हमारे दरमियान कोई इस तरह की नाराजगी नहीं है। देखें, जाहिर है चीफ मिनिस्टर है, फिर पूरा एक कैबिनेट है, स्पीकर है, ये छोटे मोटे तलखियां चलती रहती हैं, ये हर गवर्नमेंट में हुए हैं, ये कोई अनोखा काम नहीं हो रहा है, ये फिर हल भी हो जाते हैं। और हमने देखे सरदार साहब के मामला थे, हमने गुजारिशात किए, इंशाल्लाह ताला ये हल होंगे। और सरदार साहब से मेरी ये गुजारिश है और इंशाल्लाह ताला सरदार साहब कल से ही अपने डिपार्टमेंट को संभाल कर उनमें बैठेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी कोई नाराजगी नहीं है, हमें नजर नहीं आता है, आप लोगों को पता नहीं कहाँ से नजर आ जाता है इस तरह की नाराजगियां। मैं एक नहीं हमारे इसमें कोई शक नहीं है। बड़े मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, जाम खुश नसीब है कि हमारे जैसे कमजोर इत्यादि उसको मिले। नंबर 2, जैसे कहा ना कि कल रिज्यूम करेंगे, मैं माजरत चाहता हूं, ये तरीका नहीं है क्योंकि मैं रिजाइन दे चुका हूं। अगर जाम साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और मुझे कहता है कि आप कंटिन्यू आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे कोई इतराज नहीं होगा काम करने। उसके लिए मैं ये गुजारिश करूंगा, हम इसीलिए तो हाजिर हुए हैं, वो बैठ के हम कर लेंगे ना, वो बैठ के हम कर लेंगे। लगा था कि या तो उस पे आप लिख दें जो सरदार साहब ने इस्तीफा दिया है, सरदार साहब मेरी गुजारिश सुने, एक्सेप्ट ऐसे रिज्यूम नहीं होता ना, उसके बाद कानून जो नहीं है बलोची ना। तरीका है, जो बलोची मेल है, वो आप हमसे ज्यादा जानते हैं। एक तो वो लेटर आदमी वापस करता है, दूसरा फिर मेल सर वो बात हो चुकी है खुद हमारी, लेके जाते हैं। तो जाम साहब से हमारे दोस्तों ने बात की है, सवाल ये कि ये कल आपको लेके जाएंगे या आप खुद जाएंगे? न मैं खुद जाऊंगा न ये मुझे लेके जाएंगे। जाम साहब एक सेकंड, जाम साहब जैसे ही मुझे लेटर लिख के कहेंगे तो अगर ये दोस्त आ जाते हैं, मुझे ले जाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जाने के लिए भी मुझे कोई हम लोग लेकर सरदार साहब हम लोग साथ ले जाएंगे, ठीक है ना। वो जब तक मेरा इस्तीफा नामंजूर नहीं होता है उस वक्त तक मेरा जाना मेरे ख्याल में इखलाकी तौर पे ठीक नहीं है। गवर्नर नामंजूर करेगा ना? जी हाँ, वो चीफ मिनिस्टर, देखिए गवर्नर का वो नहीं है, वो है चीफ मिनिस्टर को, वो लिखेगा चीफ मिनिस्टर को। और चीफ मिनिस्टर अगर उसको लिखता है कि जी मैं सरदार इनको अपनी काबीना में रखना चाहता हूं, मैं इनका इस्तीफा मंजूर नहीं करता, तो सेकंड ऑप्शन वो हम इंशाल्लाह देखेंगे, उस प्रोसेस को हम अडॉप्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम रियली सॉरी मेरे दोस्तों की, मैं तो 3 घंटे से आपकी खिदमत में बैठा हुआ था, दोस्तों के लेट आने की वजह से आपको जो ज़हमत हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।